Okay, let's start. स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? गुड मॉर्निंग। स्क्रीन विजिबल? यस। The next property of Fourier series is the parcels relation or the average power. Parcels relation. And what it says, this relation says the power in Fourier series. So your signal is periodic. So of course this is power signal, and power in Fourier series is given by P is equivalent to 1 over T integral over minus T by 2 to T by 2 x of t whole square into dt. So this is power in Fourier series. This is power in Fourier series. Fourier series में total power कितना होगा? Because xt satisfies this property. What I can say, x of t plus t is always equivalent to xt, because Fourier series is only possible for the periodic signal. That's what I can say. X of t is always a power signal. And what is power associated with this? The power associated with this is 1 by t minus t by 2 to t by 2 x of t whole square into dt. Now, what is power in Fourier series? So you know that the Fourier series xt is given by n equal to 1, n equal to minus infinite to n equal to infinite Cn into e to the power jn omega t. So what is power in every individual harmonic? The power in harmonic is given by P equal to summation n equal to minus infinity to n equal to infinity C of n square. Yeah, to be precise, it's mod of Cn whole square. अगर आपको फूरियर सीरीज दी हुई हो तो आप दोनों को, है ना, you can write. Let me write this. This is the power in Fourier series. This is the power in Fourier series. अब इसका क्या फायदा है? इसका ये फायदा है कि आपको कितने हार्मोनिक का पावर चाहिए ये आप निकाल सकते हैं. Suppose I have this. Suppose I have amplitude spectrum like this.
I have this graph. I am interested in power for this. सपोज ये कोई स्पेक्ट्रम है मेरे पास, है ना, और ऐसा बहुत सारा चलते जा रहा है. आई कैन से these are the values. This is the value at n equal to 0. This is n. This is Cn. And what I am saying, this is 0, 1, 2, -1, -2. सपोज आपको पता करना है कि सेकेंड हार्मोनिक तक फूरियर सीरीज में कितना पावर होगा, तो इट्स वेरी इजी, है ना. क्या करेंगे आप, ये सपोज ये 2 है, ये 1 है, तो आप क्या करेंगे, यू विल एड दिस. द पावर इन फूरियर सीरीज is 2 square plus 1 square and 2 times of this will gives you the answer, है ना. तो you can find the power for the given harmonics. Given harmonic के लिए आप power calculate कर सकते हैं with the help of Fourier series. You can calculate the power with the help of trigonometric Fourier series also, है ना. X of t is given by a naught plus summation n equal to 0 to n equal to infinity an cos of n omega t plus bn sine of n omega t. So what is power in this? You can say the power in xt is given by, निकालो कितना पावर होगा इसका, फाइंड. What is power in this? It's a square plus summation, what I can say, it's a summation n equal to, it's not 0, 0 component तो पहले ही आ गया है, it's a 1. It's a an square plus bn square all divided by 2. Yeah? And what you can say, these two formulas are same, है ना. You can write this as a p of xt equal to, अरे इस फंक्शन का पावर कितना होता है, व्हाट इज पावर ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन का पावर कितना होता है, a cos थीटा का आरएमएस पावर कितना, an स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2.
और समेशन जितने हार्मोनिक का चाहिए उतने हार्मोनिक का। अब इसको कितना लिख सकता हूं मैं, ए एन प्लस माइनस जे टाइम्स ऑफ बी एन डिवाइडेड बाय, इसको लिख सकता हूं मैं सी ऑफ एन, और सी कॉन्जुगेट ऑफ एन कितना हो जाएगा, ए एन प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ बी एन डिवाइडेड बाई टू, है ना। तो यू विल गेट द सेम आइडिया। यस, क्या है, समझ में आया आप लोगों को? पावर इन फूरियर सीरीज क्लियर है? जल्दी बोले हाँ या ना। यस। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज the next concept is very important, which is convergence of Fourier series. अगला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, द कन्वर्जेंस ऑफ फूरियर सीरीज। देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चन भी पूछा है, अभी करेंगे हम वो क्वेश्चन। द कॉन्सेप्ट इज कन्वर्जेंस ऑफ फूरियर सीरीज, कि फूरियर सीरीज का डिसकंटिन्यूटी पे क्या होगा, है ना। ये इसको गिब्स इफेक्ट या गिब्स फेनोमेनन भी बोलते हैं, है ना। कन्वर्जेंस ऑफ, कन्वर्जेंस ऑफ फूरियर सीरीज एट डिसकंटिन्यूटी। है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फूरियर सीरीज एट डिसकंटिन्यूटी। सपोज डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या हुआ, कि सपोज आई हैव दिस फंक्शन, ऐसा कोई पीरियोडिक फंक्शन है सपोज मेरे पास, देन व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट इज द वैल्यू, सपोज दिस इज पॉइंट t equal to 1, we know that this function is discontinuous at t equal to 1, and let's say this point is t equal to 2, then what is the Fourier value of Fourier series at discontinuity, है ना। डिसकंटिन्यूटी पे Fourier series का वैल्यू कितना होगा, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं ना। कितना होगा जरा देखते हैं, कि सपोज आई हैव दिस फंक्शन Fourier सीरीज, मेरे पास ये एक Fourier सीरीज है, सपोज दिस। आपको समझ में आना चाहिए कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट। सपोज मैंने क्या किया, कि फूरियर सीरीज इज, दिस इज माय एक्स ऑफ टी, है ना। अब एक्स ऑफ टी को किससे बनाना है, मुझे साइन और कोसाइन से एक्स ऑफ टी को बनाना है। चलो ठीक है, हम बनाते हैं, कि लेट्स टेक,
मैंने क्या किया कि लेट्स टेक, आई एम टेकिंग प्रोजेक्शन ऑफ दिस। तो हमने क्या बोला कि फूरियर सीरीज इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पीरियोडिक वेव इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन। ठीक है, हमने पहला कोई साइन ऐड कर दिया इसमें। लेट्स से दिस इज अवर साइन। यहाँ देखता हूं तो मुझे ऐसा कुछ साइन फंक्शन मिलता है। पहला हार्मोनिक ऐड किया, एन इक्वल टू सपोज मैंने वन हार्मोनिक ऐड किया, तो ये कुछ ऐसा दिखा मुझे। है ना, ऐसा कुछ दिखा मुझे। और ये सेम है, मतलब है ना, इसको आप अलग अलग ना समझे तो कॉन्सेप्ट अभी आता है कि दिस पॉइंट इज a/2। जब ये डिसकंटिन्यूटी से पास होता है तो इस पॉइंट से पास होता है, a/2 से पास होता है। चलो थोड़ा और आगे लगते हैं। सपोज मैंने जो नंबर ऑफ हार्मोनिक मिक्स करने थे, आप करते हो ना an इंटू कॉस, bn इंटू साइन। अब क्या किया मैंने, ज्यादा हार्मोनिक मिक्स कर दिए। जैसे जैसे हार्मोनिक्स को इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, स्मूथ आपको ऐसा ही वेवफॉर्म मिलता जाएगा। सपोज आपने अब क्या किया, यू आर मिक्सिंग, यहाँ एन इक्वल टू ए की हार्मोनिक लिया था, यहाँ एन इक्वल टू ले लिए सपोज आपने 100 हार्मोनिक्स। तो कैसा होगा। मीन्स योर फंक्शन विल लुक्स लाइक दिस, है ना, मैं ऐसा बोलूं इसको। ये कुछ सिमिलर किसके जैसा दिखता जाएगा, दिस विल लुक्स लाइक ना, कुछ कुछ उसके जैसा दिखता जाएगा जो फंक्शन आपके पास अवेलेबल है। है ना, इसके जैसा दिखता जाएगा, कुछ इसके जैसा बनता जाएगा। अब आपने क्या किया, हार्मोनिक्स की वैल्यू और इंक्रीज कर दी। हार्मोनिक्स का वैल्यू क्या इंक्रीज कर दिया, और कर दिया इंक्रीज। हार्मोनिक्स का वैल्यू इंक्रीज करने से क्या हुआ, लेट्स सी। सपोज यू आर सेलेक्टिंग n इक्वल टू,
सपोज यू आर सिलेक्टिंग n इक्वल टू सपोज 1000 या 500 आप सिलेक्ट किया, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यू कैन एक्सपेक्ट वन परफेक्ट फूरियर सीरीज की जिसमें थोड़ा सा ऑसिलेशन हो, बट ओके यू विल गेट द perfect Fourier series. So you can say your Fourier series will looks like this. Maybe there is some oscillation. है ना, कोई दूसरा कलर ले लेता हूं मैं. Let's say this. मे बी दिस इज योर फूरियर सीरीज. तो आपसे बोला कि बताओ इस पॉइंट पे फूरियर सीरीज का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोल दोगे कि ठीक है ये जो भी वैल्यू होगा इसका फूरियर सीरीज में वो वैल्यू लिखेंगे तो वो मिल जाएगा मुझे. लेकिन व्हाट अबाउट दिस पॉइंट? एक पॉइंट मेरे पास ऐसा भी है जो डिसकंटिन्यूअस है. दिस पॉइंट इज डिसकंटिन्यूअस. यहाँ तो पता चला नहीं कि मेरे पास कितना वैल्यू होगा फूरियर सीरीज का. ये वैल्यू कहां से आएगा कि फूरियर सीरीज ने जब आपने लेस हार्मोनिक्स मिक्स किए थे तब कितना आ रहा था वैल्यू? a/2. a/2 ना. यू कैन चेक ऑन TRO की ये वैल्यू a/2 ही है. तो डिसकंटिन्यूटी पे फूरियर सीरीज का वैल्यू कैसे निकालते हैं कि सपोज आई हैव वन पॉइंट विच इज t इक्वल टू 1. So the value of Fourier series and t equal to 1 is discontinuity. So I can say the value of Fourier series at t equal to 1 is given by the value of Fourier series at t equal to 1 plus minus sorry plus 1 minus divided by 2. तो t इक्वल टू अगर आपको कोई जीरो पे फूरियर सीरीज का वैल्यू पूछेगा तो कितना बताओगे? 1 है ना. t इक्वल टू 0 प्लस पे वैल्यू कितना है? 1. t इक्वल टू 0 माइनस पे वैल्यू कितना है? 0 डिवाइडेड बाय हाउ मच? 2. तो आप डिसकंटिन्यूटी को जो रिजॉल्व करने के लिए आप यूज करते हैं वही यहाँ भी यूज करना है. द वैल्यू ऑफ फूरियर सीरीज एट डिसकंटिन्यूटी इज इक्विवेलेंट टू एवरेज. ये बात समझ में आई? इस पे भी क्वेश्चन पूछा है, अभी आएगा डिस्कशन में. इज इट क्लियर? ये बात आपको क्लियर हुआ? बहुत अच्छा. नेक्स्ट पॉइंट इज द सिमेट्रिक इन फूरियर सीरीज. फूरियर सीरीज में इवन सिमेट्रिक ऑड सिमेट्रिक हमने पढ़ लिया, बट देयर इज वन मोर सिमेट्री नोन एज हाफ वेव सिमेट्री. फूरियर सीरीज का एक और सिमेट्री कौन सा है? हाफ वेव सिमेट्री. देखते हैं जरा, है ना. द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ फूरियर सीरीज इज हाफ वेव सिमेट्रिक फंक्शन. और क्या होता है हाफ वेव सिमेट्री? x प्लस t प्लस माइनस e/2 इक्वल टू x ऑफ t, है ना. किसी भी वेवफॉर्म के हाफ पीरियड तक जाओ और उसको ऑपोजिट कर दो इज इक्वलेंट टू माइनस ऑफ xt, है ना. Then this function is known as half wave symmetric function. अब देखो हाफ वेव सिमेट्री कैसे पता करते हैं. सपोज आई हैव दिस फंक्शन, है ना, और ये मेरे पास एक ओके ये मेरे पास फंक्शन है.
Suppose this is 0, this is t by 2, this is t, this is 3t by 2, this is 2t. आप क्या करें, हाफ वेव सिमेट्री पता करना है ना, तो बड़ा आसान काम है। किसी भी पॉइंट से फंक्शन को आप मार्क करें, उसके हाफ पीरियड तक जाएं, तो हाफ पीरियड जाने के बाद जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव करते हैं, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करते हैं। क्या आपको माइनस टाइम्स ऑफ एक्स टी मिलता है? बिल्कुल मिलेगा। देखो ये यहां से आपने फंक्शन कैच किया और जो पॉजिटिव था उसको नेगेटिव कर दिया, जो नेगेटिव था उसको पॉजिटिव कर दिया, तो फंक्शन कैसा मिला? माइनस ऑफ एक्स टी। दिस मीन्स दिस इज एग्जाम्पल ऑफ हाफ वेव सिमेट्री, है ना। ये किसका एग्जाम्पल है? दिस इज एग्जाम्पल ऑफ हाफ वेव सिमेट्रिक फंक्शन। अब हाफ वेव सिमेट्रिक फंक्शन से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? इसमें भी दो बातें हैं। पहली बात, है ना, ये आप ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हाफ वेव सिमेट्रिक यू कैन डिवाइड इट इनटू द टू पार्ट। हाफ वेव सिमेट्री का पहला पार्ट है वो ये है ना, कि सपोज ऐसा कोई फंक्शन है, सपोज आई हैव दिस फंक्शन, फंक्शन एक्स ऑफ टी प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई करता ही है। एक्स ऑफ टी प्लस माइनस टी बाई टू इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एक्स टी, ऐसा तो कुछ है ही, है ना। उसके साथ साथ और क्या करता है? उसके साथ साथ ये भी फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि एक्स ऑफ माइनस टी इक्वल टू, अच्छा, फंक्शन सेटिस्फाइज दिस प्रॉपर्टी, है ना। इसमें जो हार्मोनिक्स होंगे वो कौन से होंगे? ऑड हार्मोनिक्स होंगे ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा जाता है। अगर इफ फंक्शन सेटिस्फाइज दिस, द फंक्शन कंसिस्ट ओनली ऑड हार्मोनिक्स, है ना। कि इस टाइप के फूरियर सीरीज में कौन से कंपोनेंट होंगे? ओमेगा नॉट, 3 ओमेगा नॉट, 5 ओमेगा नॉट, 7 ओमेगा नॉट एंड सो ऑन, 2n+1 ओमेगा नॉट। अगर आपका फंक्शन हाफ वेव सिमेट्रिक है तो उसमें केवल कौन से हार्मोनिक्स होंगे? ऑड हार्मोनिक्स। अब वो हार्मोनिक्स साइन के भी हो सकते हैं और कोसाइन के भी हो सकते हैं। आगे देखते हैं साइन के कब होंगे, कोसाइन के कब होंगे। सो इफ योर फूरियर सीरीज सेटिस्फाइज दिस, किसको सेटिस्फाई करता है फूरियर सीरीज? एक्स ऑफ माइनस टी इक्वल टू एक्स टी। अगर फूरियर सीरीज कैसा है? दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन और एक्स ऑफ टी प्लस माइनस टी बाई टू अगर माइनस एक्स टी के इक्वल है, तो इस फूरियर सीरीज को क्या बोल सकते हैं? इसमें कॉस के ऑड हार्मोनिक्स होंगे। तो फूरियर सीरीज विल कंटेन द ऑड हार्मोनिक्स ऑफ कॉस। और अगर फंक्शन आपका ऑड है ना, एक्स ऑफ माइनस टी इज माइनस टाइम्स ऑफ एक्स टी, अगर ऐसा है, विद दिस एक्स ऑफ टी प्लस माइनस टी बाई टू माइनस एक्स टी के इक्वल है, तो व्हाट यू कैन से, होंगे तो यहां भी ऑड हार्मोनिक, लेकिन ये कितना हो जाएगा? 2n+1 ओमेगा नॉट, और वो किसका? साइन का। इसको हम क्वार्टर वेव सिमेट्री भी बोलते हैं, बट ओके। तो इन दो बातों का ध्यान रखें, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सपोज ये टर्म है, तो इसमें इसका फूरियर सीरीज अगर आपको लिखना हो, वैसे आपने तो लिखा है फूरियर सीरीज, इसमें देखो आपको जो टर्म्स मिले थे वो कौन से मिले थे? ओनली ऑड टर्म्स मिले थे। ओमेगा नॉट, 3 ओमेगा नॉट बाई 3, 5 ओमेगा नॉट बाई 5। तो इस टाइप की सिमेट्री को क्या बोलते हैं हम? हाफ वेव सिमेट्री।
अब जरूरी नहीं है कि हाफ वेव सिमेट्री हमेशा आपको दिख जाए, कभी ऐसा भी हो सकता है कि हाफ वेव सिमेट्री दिखे ना। जैसे मैंने ऐसा बोला कि आई हैव लेट से, दिस इज एग्जांपल ऑफ हिडन हाफ वेव सिमेट्री, है ना। हिडन हाफ वेव सिमेट्री का मतलब क्या हुआ? है ना, दिस इज एग्जांपल ऑफ हिडन सिमेट्री। कि सपोज आई हैव फंक्शन लाइक दिस, है ना। हिडन सिमेट्री का कॉन्सेप्ट आप समझे कि अगर मेरे पास कोई ऐसा फंक्शन है, मैंने पूछा कि क्या ये फंक्शन हाफ वेव सिमेट्रिक है, तो ऑफ कोर्स आपका आंसर होगा नहीं, ये तो हाफ वेव सिमेट्रिक नहीं है। क्या ये फंक्शन हाफ वेव सिमेट्रिक है? नहीं है। अगर मुझे पता करना हो कि इसमें ऑड टर्म होंगे या नहीं होंगे, तो आप क्या करें कि इसको हाफ वेव सिमेट्रिक बना लें। कैसे बनाएंगे? इसकी हाफ टर्म पे जाके एक लाइन खींच दें, दिस इज न्यू न्यू रेफरेंस पॉइंट। अब देखो, ये ए है और ये माइनस ए है। हाफ पीरियड पे जाको इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव को नेगेटिव कर दो। इस टाइप की सिमेट्री कौन सी होगी? हाफ हिडन हाफ वेव सिमेट्री। और इस हिडन हाफ वेव सिमेट्री में आपने क्या देखा कि एम्पलीट्यूड के साथ आपने प्लस माइनस किया है, तो एम्पलीट्यूड में प्लस माइनस करने से अगर आपको हाफ वेव सिमेट्रिक फंक्शन दिख जाता है ना, दिस इज ऑफ कोर्स है हाफ वेव सिमेट्रिक फंक्शन। कि ये पार्ट और ये पार्ट हाफ वेव सिमेट्रिक है। और अगर ऐसा है तो यू कैन से यहाँ भी कौन से हार्मोनिक होंगे? ऑड हार्मोनिक्स होंगे। यहाँ भी कौन से हार्मोनिक होंगे? ऑड हार्मोनिक्स। और है ना, एग्जाम में बहुत सारी बार इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि यहाँ कौन से हार्मोनिक्स होंगे, तो देयर विल बी ऑड हार्मोनिक्स इन दिस। तो देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ हिडन सिमेट्री इज देयर, कि अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप क्या करें, प्लस माइनस करके उसको ऑड ना हाफ वेव सिमेट्रिक बनाने की कोशिश करें। जैसे ही फंक्शन में हाफ वेव सिमेट्रिक हुआ, द वैल्यू ऑफ द ओनली ऑड हार्मोनिक्स विल बी अवेलेबल। ये बात समझ में आई? ये क्लियर है? हाँ ना, कैन यू एक्सप्लेन अगेन? हाँ, मैं ये बोल रहा हूं कि सपोज आपके पास एक और ये फंक्शन है ना। सपोज यू हैव दिस फंक्शन। एक और एग्जांपल देखें इसका, कि सपोज वी आर हैविंग दिस फंक्शन। मैंने बोला कि लेट से मेरे पास ऐसा फंक्शन है, this is 0, this is t by 2, this is t, this is 3t by 2 and this is 2t, है ना। मैंने क्या बोला आपको, कैसे हाफ वेव सिमेट्रिक करते हैं? चेक, फंक्शन में किसी भी पॉइंट से, है ना, किसी भी पॉइंट से आप फंक्शन को स्टार्ट करो, उसके आधे पीरियड तक जाओ, है ना। तो कंप्लीट पीरियड टी, तो आधा पीरियड टी बाई टू से कितना हुआ? टी। इस पीरियड पे जाके इस वेवफॉर्म का अपोजिट बना लो, कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। आपको नहीं लगता ये माइनस टाइम्स ऑफ एक्स टी है? तो आपने किया क्या है, एक्स ऑफ टी माइनस टी बाई टू को आपने माइनस टाइम्स ऑफ एक्स टी के लिए बता दिया। ठीक है, इसमें कौन से हार्मोनिक होंगे और फंक्शन कैसा है? ऑड सिमेट्रिक फंक्शन है, तो इसमें कोसाइन के आठ हार्मोनिक्स होंगे, टू एन प्लस वन ओमेगा नॉट, है ना, सम के टाइम्स ऑफ साइन के आठ हार्मोनिक्स होंगे। अब मैं हिडन सिमेट्री का कॉन्सेप्ट आपको बताना चाह रहा हूं कि नो, सपोज मेरा फंक्शन कुछ ऐसा है ना, फंक्शन कुछ सपोज ऐसा है।
अब सपोज ऐसा फंक्शन है, तो आपको ये समझ में आता है क्या कि यहाँ तो कोई सिमेट्री दिख नहीं रही है आपको, इसको अपोजिट करोगे ये इसका 0 है, ये t है। अब हाफ टाइम पीरियड तक जाके अगर इसको आप कर दो तो बात बनेगी नहीं। तो क्या किया जाए, किया ये जाए कि कुछ नहीं करना है, इसमें एक एक्सेस ऊपर शिफ्ट करना है। इसको सपोज यहां शिफ्ट कर दो, लेट्स से दिस इज न्यू न्यू एक्सेस। यहां से देख लो आप, अब तो बात बन गई। देखो, जितना ये पॉजिटिव में दिखता है उतना ये नेगेटिव में दिखता है, जितना ये पॉजिटिव में दिखता है उतना ये नेगेटिव में दिखता है। तो हाफ पे जाके इसको अपोजिट करोगे तो यू विल गेट द सेम हाफ वेव सिमेट्री। तो यहाँ भी जो हार्मोनिक अवेलेबल होंगे वो कौन से हार्मोनिक होंगे, आठ हार्मोनिक्स अवेलेबल होंगे, है ना। इसको बोलते हैं हिडन सिमेट्री। हाँ जी, कैन यू एक्सप्लेन दिस इन प्रीवियस एग्जाम्पल अगेन। हाँ, प्रीवियस एग्जाम्पल में भी बता सकते हैं, है ना। प्रीवियस एग्जाम्पल में देखते हैं। मैंने आपको ये बोला कि इस फंक्शन में कोई, ये कोई फंक्शन आपके पास है ना, दिस इज सपोज दिस इज एक्स ऑफ टी, है ना, 0 t/2 t 3t/2 2t एंड दिस इज ए। मैं बोलता हूं कि ओके, आपको सिमेट्रिक इज ऑल रिलेटेड अबाउट दैट, सिमेट्रिक गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट हार्मोनिक्स कि किस टाइप के हार्मोनिक्स होंगे। तो एम्पलीट्यूड में चेंज करने से हार्मोनिक्स पे कोई इफेक्ट आता है क्या, नहीं आता है। तो मैं बोलता हूं कि जस्ट ड्रॉ xt माइनस ए, आप उसको ड्रॉ करें। और जैसे ही आपने xt माइनस a/2 ड्रॉ करें, तो xt माइनस अगर a/2 ड्रॉ किया तो क्या मिलेगा आपको, कि जो पॉइंट आपको मिल रहा था ए पे वो मिलने लगेगा a/2 पे, और जो मिल रहा था 0 पे वो मिलने लगेगा -a/2 पे, एंड यू विल गेट दिस वेव फॉर्म। अब मुझे बताओ, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करें आप फंक्शन, हाफ टाइम पीरियड तक जाए, यहां से स्टार्ट किया हाफ टाइम पीरियड तक गए और उसको अपोजिट किया, तो क्या ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी माइनस प्लस t/2, और इसको सेटिस्फाई करता है। तो दिस इज हाफ वेव सिमेट्रिक फंक्शन, और इसकी फूरियर सीरीज में भी कौन से हार्मोनिक्स होंगे, ओनली आड हार्मोनिक्स। ओके, फाइन, गुड। आगे बढ़ते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट याद रखें, ये वो कॉन्सेप्ट है जिन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। ओके, द नेक्स्ट इज रिमूविंग द फूरियर कॉफिशिएंट, है ना। जैसे मैंने क्या बोला कि सपोज आपके पास ये कोई फंक्शन है ना, है ना, सपोज ये फंक्शन है, वी आर इंटरेस्टेड इन वी आर इंटरेस्टेड इन सी एन वर्सेस एन। सी एन एन पे कैसे डिपेंड करता है इसके बारे में हम जानना चाहते हैं ना। तो आप ये बात ध्यान रखें कि सपोज आपके पास ये स्क्वायर वेव है, स्क्वायर वेव में देखो, स्क्वायर वेव में सी एन किसके प्रोपोर्शनल होता है, सी एन इज प्रोपोर्शनल टू 1/n होता है ना। हमने देखा था कि जब इसकी फूरियर सीरीज लिखी थी तो इट इज कॉस ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 1, कॉस ऑफ 3 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 3। तो ये 3 और 5 और 7 क्या है, c/n है। तो देखो, कितने किस एन पे डिपेंड करेगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि इसको इंपल्स बनाने के लिए कितने डिफरेंशिएशन की जरूरत है। इसको इंपल्स बनाने के लिए कितने डिफरेंशिएशन की जरूरत है, एक डिफरेंशिएशन की जरूरत है ना। इस इस वैल्यू को इंपल्स बनाने के लिए यू नीड वन डिफरेंशिएशन। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, सी एन इज प्रोपोर्शनल टू 1/n। सपोज आपके पास कोई स्क्वायर वेव है ना,
ये स्क्वायर वेव है सपोज, आपको क्या लगता है Cn का वैल्यू कितना होगा? आपको ये समझ में आना चाहिए कि जैसे ही मैंने इसको डिफरेंशिएट किया ये कितना हो जाएगा ऐसा, और फिर इसको डिफरेंशिएट किया तो कैसा बन जाएगा? इम्पल्स। तो किसी वेवफॉर्म को इम्पल्स बनाने के लिए जितने डिफरेंशिएशन की जरूरत होती है वो Cn की उस पावर के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ कितना होगा? Cn इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू 1/n स्क्वायर। द पावर ऑफ n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना? तो दिस इज द फूरियर सीरीज, डिपेंडेंसी ऑफ फूरियर सीरीज कोफिशिएंट ऑन n। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? ऑब्जर्वेशन की बात है, नथिंग डिफिकल्ट हियर। क्या ये क्लियर हुआ आपको? जैसे कोई फंक्शन सपोज इम्पल्स ही है ना? और देखते हैं कि सपोज कोई फंक्शन सपोज इम्पल्स है, इम्पल्स ट्रेन है। इस फंक्शन में Cn किस बात पे डिपेंड करेगा? इसको तो इम्पल्स बनाने के लिए मुझे कोई डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं है, तो मैं Cn का वैल्यू कितना बोल दूंगा? n टू द पावर 0, और n टू द पावर 0 मींस नो डिपेंडेंस, है ना? Cn का वैल्यू n पे डिपेंड ही नहीं करता। Cn इज नॉट प्रोपोर्शनल टू n। ये बात क्लियर हुई? चलो ठीक है, अब इन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। वी विल टेक अनदर टॉपिक, सो लेट्स टेक फ्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। फूरियर सीरीज आप प्रैक्टिस करें, है ना, आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट को भी इंप्रूव करेगा, और है ना फूरियर सीरीज से एज ए सिग्नल, है ना, कभी आ जाता है क्वेश्चन, कभी नहीं आता है। दे आस्क मैक्सिमम क्वेश्चन फॉर फूरियर ट्रांसफॉर्म, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी होता है ये, पर ठीक है, आप है ना इसको कर सकते हैं कंसेप्चुअली प्रिपेयर। जैसे मैंने बोला आपको कि इस को स्टॉप करता हूं मैं और दूसरा स्लाइड ओपन करता हूं, लेट्स से। क्या ये पीपीटी आपको विजिबल है? पीपीटी विजिबल थी, अभी आया था? यस, चलो। दिस आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन फूरियर सीरीज। जरा इनको है ना हम ट्राई करते हैं, जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं वो कॉन्सेप्ट हमें लगाना है। और है ना, मैं मैसेज नहीं देख सकता आपके, तो ठीक है, आप, मैं आपको टाइम देते जाता हूं, सॉल्व दिस क्वेश्चंस। Periodic rectangular signal xt has the waveform as shown in the figure. The frequency of the fifth harmonic of its spectrum. फिफ्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? चलो निकालते हैं इसको, है ना, करें आप कैलकुलेट, कितना होगा फिफ्थ हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी? ओके, सबसे पहले आप क्या करें, इस फंक्शन का टाइम पीरियड निकाल लें। व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ दिस फंक्शन? 0 to 4 मिली सेकेंड के बाद अपने आप को रिपीट करेगा ये। तो यू कैन से द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 into 10 raised to the power -3 सेकेंड। तो एफ नॉट का वैल्यू आ जाएगा
1000 डिवाइडेड बाय 4 इज 250। और आपको पूछा है कि बताओ फिफ्थ हार्मोनिक कितना होगा, तो आप जानते हैं एफ ऑफ एन इज इक्वल टू हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, एन इंटू एफ नॉट। इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज नोन एज हार्मोनिक। फिफ्थ हार्मोनिक पूछा है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को 250 से मल्टीप्लाई कर दें, तो व्हाट विल बी द आंसर, 1250 हर्ट्ज विल बी द आंसर। सो व्हाट इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, डी इज करेक्ट आंसर कि इसका पहला हार्मोनिक कितना होगा। और अच्छा, इसी फूरियर सीरीज में अगर मैं पूछूं कि सेकेंड हार्मोनिक कितना होगा, तो आंसर होगा 0। क्यों, क्योंकि इसमें सेकेंड हार्मोनिक अवेलेबल ही नहीं है ना। सेकेंड हार्मोनिक का एम्पलीट्यूड कितना होगा, बिकॉज दिस इज हाफ वेव सिमेट्रिक फंक्शन, सो यू कैन से सी ऑफ 2 विल बी 0, है ना, या मैं लिखूं सी ऑफ 2n विल बी 0 ऑलवेज। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंड हार्मोनिक। आई होप दिस इज क्लियर। करें, दोनों कर लें, दोनों अच्छे क्वेश्चन है। क्या पूछा है आपसे, पहले क्वेश्चन में पूछा है, पहले क्वेश्चन में पूछा है द rectangular wave shown in the figure RMS value of the voltage is equivalent to, ठीक है, ये तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। हाउ यू फाइंड RMS वैल्यू, इट्स 1/3, है ना, स्क्वायर्ड वैल्यू, ये ऐसा हो जाएगा। तो 1/3 बेस इंटू हाइट, तो बेस इज हाइट इज 1, बेस इज t/2 डिवाइडेड बाई टी, तो कितना आया, टी एन टी कैंसल, इट्स 1/6। और ये आरएमएस पावर आया, तो आरएमएस पावर का अंडर रूट निकालोगे तो आरएमएस वैल्यू आ जाएगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। आपको कोई डाउट हो तो आप, है ना, मैं मैसेज नहीं देख सकता, आपको यही बताना पड़ेगा, है ना। इफ यू हैव एनी डाउट आप इसी स्क्रीन पे मुझे, है ना, अनम्यूट करके बता दें। द फूरियर सीरीज फॉर द सिग्नल साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, बताओ भाई इसका फूरियर सीरीज कितना होगा। कोई फंक्शन खुद ही साइन है तो फूरियर सीरीज का मतलब भी तो यही होता है। फूरियर सीरीज मींस व्हाट, the representation of square periodic function in terms of as a function of sine and cosine। ठीक है, कितना हो जाएगा फूरियर सीरीज, 1 माइनस, यू नो दैट साइन स्क्वायर ऑफ cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ x, तो ये कितना हो जाएगा,
cos 2x plus 1 divided by 2. So this is cos 2x plus 1 divided by 2. Cos, acha, it's a 1 now. 1 minus cos x. 1 minus cos x divided by 2. So which option is correct? D option is correct. इस क्वेश्चन का आप मार्क्स देखो, कितना मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। फूरियर सीरीज ही तो है ये। इसको आप बोल दो सपोज दिस इज ए नॉट, और ये बोल दो कितना, एन कॉस ऑफ 2x। कौन सा हार्मोनिक है ये? इस सिग्नल का फ्रीक्वेंसी भी कितना है, ओमेगा इक्वल टू 2, तो ये तो फर्स्ट हार्मोनिक ही हुआ। ओके, पिछले वाले पे भी आते हैं। सबसे पहले इसको ट्राई करो, थोड़े आसान कर लो पहले। ये 2011 1 मार्क क्वेश्चन, बताओ भाई। What we can say, this function will show you two characteristics. देखो जरा, x of माइनस टी इक्वल टू एक्स टी, और x ऑफ माइनस टी एक्स ऑफ टी के बराबर है। तो मुझे ये पता चलता है कि फूरियर सीरीज में केवल कौन से टर्म होंगे, कॉस टर्म्स होंगे। सो हाउ आई कैन राइट, फूरियर सीरीज विल बी a0 प्लस summation n equal to 1 to infinity n cosine of n omega t, द टर्म bn विल बी 0। तो यहां तो एक बात समझ में आई कि केवल an bn का वैल्यू कितना होगा इस फूरियर के सीरीज के लिए, 0। अब अगली बात है हार्मोनिक की। तो कौन से हार्मोनिक अवेलेबल होंगे? तो मैंने अभी आपको बताया, द कॉन्सेप्ट ऑफ हिडन हाफ वेव सिमेट्री ना। ये क्वेश्चन किस पे पूछा है? हिडन हाफ वेव सिमेट्री। तो देख लो, दिस पोर्शन इज इक्विवेलेंट टू दिस पोर्शन, और ये किस बात की गारंटी है? ऑड हार्मोनिक्स। ऐसा ही तो कुछ क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे कि ए एंड बी एन, द पीरियोडिक सिग्नल। तो पहला ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज ए जीरो एग्जिस्ट करेगा, यस। बी एन एग्जिस्ट करेगा, नो, ये तो नहीं है। ए जीरो एग्जिस्ट करेगा, यस। ए जीरो तो एग्जिस्ट करेगा ही, बिकॉज इट इज 1 बाय, है ना। ए जीरो कितना होता है? इट इज ए इंटू टी बाई टू एरिया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड। तो ए जीरो का वैल्यू कितना है? ए बाई टू। क्योंकि इवन फंक्शन में हमेशा ए जीरो तो फाइनाइट होगा ही है। ए जीरो एग्जिस्ट करेगा, ए एन एग्जिस्ट करेगा, और एन का वैल्यू 1 2 3 हो सकता है क्या? नो, 2 नहीं हो सकता। ए जीरो ए एन बी एन फॉर 1 2 3, नो। ए जीरो एंड ए एन एग्जिस्ट करेगा फॉर एन इक्वल टू 1 3 5, ये ऑप्शन है करेक्ट, और इसके आपको दिए जाते हैं 1 मार्क। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन यू कैन राइट द आंसर। The second harmonic components of the periodic waveform is given in the figure. The amplitude is, अब है ना, कोई जिसको फूरियर सीरीज का केवल फॉर्मूला पता है, वो इसके लिए क्या करेगा? फूरियर सीरीज कैलकुलेट करेगा। लेकिन अगर किसी को पता है कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ वेव सिमेट्री ना, तो आपको पता है हाफ पीरियड पे जाके अगर इसको उल्टा करेंगे तो दिस इज एक्स ऑफ टी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एक्स टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस माइनस टी बता रहा है। अगर ऐसा है तो कौन से हार्मोनिक होंगे? ऑड हार्मोनिक्स ही होंगे। अगर ऑड हार्मोनिक्स ही होंगे तो इसने क्या पूछ लिया है? इसने तो पूछ लिया है पावर इन सेकंड हार्मोनिक। तो सेकंड हार्मोनिक में पावर कितना होगा? 0। नो नीड टू कैलकुलेट, ये सारे प्रीवियस ईयर है। चलो अगला फंक्शन देखो। अगर ये कोई फंक्शन है मेरे पास, विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस फंक्शन? ये गेट 2015 में पूछा है।
सिग्नम ऑफ कॉस्टी बोला है ना, सिग्नम ऑफ कॉस्टी का वैल्यू कितना होगा? यस, क्वेश्चन लिख लिया था आपने? ये विजिबल है आपको, है ना? तो क्वेश्चन इज विजिबल। हाँ, जरा इसको करें। मैं इसको वन नोट पे करता हूँ सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड। कितना है इसका आंसर, जल्दी बताएं मुझे, है ना? टू मार्क क्वेश्चन है ना, और शायद है ना इन क्वेश्चन में कुछ नहीं, आपसे एक ही बात पूछना चाहता है, या तो हिडन हाफ वेव सिमेट्री या सिमेट्री या इस टाइप की कुछ बातें जो बहुत बेसिक ऑब्जर्वेशन है। वेटिंग फॉर आंसर। कितना आंसर है भाई? निकाल लो जल्दी, आंसर कितना है?
नो? ओके, वेरी गुड। चलो करते हैं इसको। क्या पूछा है? द क्वेश्चन इज, द फंक्शन इज गिवन एज सिग्नम ऑफ एक्स, है ना? तो फंक्शन कैसा दिया है? सिग्नम ऑफ एक्स। और सिग्नम एक्स का डेफिनेशन भी दिया है। इट इज एक्स डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो आपको क्या पता चला कि व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो इट्स वन, व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो इट्स माइनस वन। चलो बना लेते हैं इसको हम, है ना? कि अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा तो, है ना, सिग्नम x कितना होगा? वन। और x का वैल्यू लेस देन जीरो हुआ तो सिग्नम x कितना होगा? माइनस वन। अब आपके पास जो सर हाँ जी, प्रेजेंटेशन स्लाइड से लिख रहे हैं। अच्छा स्लाइड्स, वेट 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 वेट। हाउ फंक्शन इज गिवन? signum of x, signum of x is given as x by mod of x। क्या बोला है कि when I can write when x is greater than 1, greater than 0, the function is 1, because 1 divided by, है ना, any greater than number is both positive। when x is less than 0 the function is minus 1, है ना? सिग्नम का वैल्यू ग्रेटर देन 0 पे है प्लस 1 और लेस देन 0 पे है माइनस 1। अब आपको फंक्शन क्या दिया है? द फंक्शन इज गिवन एज सिग्नम ऑफ cos t, सिग्नम ऑफ cos t। अब आप देखें कि cos कैसा फंक्शन है, इसका जो एंगल है वो कैसा जाता है? इस टाइप का फंक्शन cos होता है। ठीक है, तो ये तो है cos t। और अब ड्रॉ कर देता हूं मैं सिग्नम ऑफ cos t। लेट्स से आई एम इंटरेस्टेड इन सिग्नम ऑफ cos t। आपको क्या लगता है इन दिस ड्यूरेशन cos t कैसा हुआ? पॉजिटिव। तो कैन आई से सिग्नम ऑफ पॉजिटिव नंबर? सिग्नम ऑफ पॉजिटिव नंबर कैसा बनता है? वन। सो आई कैन दे से दिस इंटरवल फंक्शन विल बी वन। फिर दिस इज नेगेटिव, और नेगेटिव में कितना बनता है? माइनस वन। सो दिस फॉर दिस इंटरवल फंक्शन विल बी नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव। सिग्नम ऑफ कॉस टी ऐसे ही तो बनने वाला है। बोलो हाँ या ना? अब इस फंक्शन की दो कैरेक्टरिस्टिक्स है। दिस इज हाफ वेव सिमेट्रिक। एक और कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है? दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन। अब इन दो से रिलेटेड क्वेश्चन ही तो पूछा है उसने। तो जो क्वेश्चन पूछा था वो क्या था? यहां तक क्लियर हुआ क्या? ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया? वैष्णवी ने आंसर बताया। क्या ये एक्सप्लेनेशन क्लियर है कॉस ऑफ सिग्नम टी का? हाँ या ना? क्या ये एक्सप्लेनेशन क्लियर है आप लोगों को? यस। अगर ये एक्सप्लेनेशन क्लियर है तो व्हाट शुड आई से? मैं आता हूं फिर पावर पॉइंट स्लाइड्स पे। नाउ विंडो दिस। यस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए? व्हाट आई कैन से, दिस इज स्लाइड शो। ओके, ओनली हमने क्या देखा था? इवन फंक्शन है ये।
can take this pen. Okay. Okay. साइन टर्म्स विथ ऑल हार्मोनिक्स, नहीं साइन टर्म्स नहीं होंगे उसमें। कौन से इवन फंक्शन है? तो एक तो कोसाइन टर्म्स होंगे, cos थीटा होगा, और ऑड हार्मोनिक्स होंगे बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन इज हाफ वेव सिमेट्रिक ऑल्सो। ये दो पॉइंट है। चलो पहला तो नहीं है। दूसरा, ओनली कोसाइन विथ ऑल हार्मोनिक्स। ऑल हार्मोनिक्स वाली बात तो गलत हो गई, वह इवन नंबर ऑफ हार्मोनिक्स वाली भी बात गलत हो गई। तो ओनली कोसाइन विथ ऑल हार्मोनिक्स इज करेक्ट, है ना। ये पता करने के आपको 2 मार्क दिए हैं 2015 में। वेरी सिंपल क्वेश्चन। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, ऑड फंक्शन। अब कोई फंक्शन अगर ऑड होगा तो बताओ, ऑड फंक्शन में ए जीरो का वैल्यू हमेशा कितना होगा? जीरो, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड अगर आपने किया तो ए जीरो इज ऑलवेज जीरो। तो क्या होगा ऑड फंक्शन का फूरियर सीरीज? बी इज करेक्ट ऑप्शन। केवल कौन सी टर्म होगी? केवल केवल साइन टर्म होगी, और ए जीरो का वैल्यू कितना होगा? जीरो। तो ये नहीं हो सकता, ऑड में ये नहीं आ सकता। और ये कॉन्सेप्ट कहां से आया ऑड हार्मोनिक वाला? अच्छा, वेट, दिस इज हार्मोनिक भी कौन से होंगे? ऑड हार्मोनिक ही होंगे यार, है ना। सारे हार्मोनिक नहीं होंगे इफ फंक्शन इज सिमेट्रिक। डी ऑप्शन इज करेक्ट। But okay, D nahi, it's a B, which is correct option because this is generalized result. हाफ वेव सिमेट्रिक थोड़ी ना है, ऑड फंक्शन हमेशा हाफ वेव सिमेट्रिक हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। सो यू कैन से विच ऑप्शन इज करेक्ट? साइन टर्म्स होंगे। क्या ये क्लियर है? अरे ये बोल रहा है कि साइन की इवन हार्मोनिक ऑड हार्मोनिक्स कब होते हैं? ये तो हाफ वेव सिमेट्रिक का है ना, अवर फंक्शन इज ओनली ऑड फंक्शन। हाफ वेव सिमेट्रिक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है। तो ऑड में क्या आता है? केवल दिस। अगला, अगेन 2019, पिछले सालों की क्वेश्चन है ये तो। A periodic function ft with a period of 2 pi is represented by, it's a Fourier series, ft equal to a naught plus an cos of nt plus bn sin of nt। तो आपको पूछा है कि बताओ फूरियर सीरीज कॉफिशिएंट फॉर a1 एंड b1 कितना होगा? देखो, फंक्शन आपको ऐसा दिया हुआ है, 0 टू पाई, इस इंटरवल में वैल्यू दी हुई है a sin of t, हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट। पाई टू 2 पाई, इस इंटरवल में वैल्यू दी हुई है 0। व्हाट इज वैल्यू ऑफ, है ना, कितना लिख दूं? फ्रॉम 0 टू पाई a sin t into dt by 1 by t। दिस इज वैल्यू ऑफ a जीरो। अब आपको पता है दिस इज a by t। व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ sin थीटा? sin थीटा फ्रॉम 0 टू पाई, इट्स अ 2 divided by e। Okay, calculate this।
कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2 पाई, है ना। तो और ये कितना हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, आंसर इज a by पाई, a0 इज ओके, कुछ मिस्टेक किया है हमने, लेट मी क्लियर दिस, इरेजर। इस फंक्शन का फूरियर सीरीज निकालना है ना। व्हाट इज वैल्यू ऑफ a naught? The value of a naught is equivalent to 1 by t integral of 0 to t by 2, है ना, यही फंक्शन होगा। तो इसको लिख देता हूं मैं, 1 by 2 pi integral from 0 to pi a sin t dt। ये कितना हो जाएगा, a into 2 divided by a into 2 divided by 2 pi, so this is 2 and 2 cancel, value of a0 is a by pi, so nothing like a by pi। अच्छा, a1 तो पूछा ही नहीं है इसमें, why we are finding a0 नहीं पूछा है, दे आर नॉट आस्किंग a0, नो, a1 पूछा है। a1 कितना होता है, an कितना होता है, इट्स 2 by 2 pi इंटीग्रल ऑफ 0 to pi, इट्स ft a sin of t into what, an पूछा है, तो an में कौन सा टर्म आएगा, cos of n ओमेगा t, n का वैल्यू कितना है 1, तो cos ऑफ ओमेगा t, तो दिस इज a sin t और ओमेगा का वैल्यू है 1, तो a sin t cos t, आपको पता है दिस इज sin 2t, और sin 2t का एक पीरियड के अंदर इंटीग्रेशन कितना होगा, 0 होगा, यहाँ तो ठीक है, इट्स 0। a1 का वैल्यू तो आ गया 0, b1 का वैल्यू निकालते हैं, b1 इज 2 by t, यानी 2 by t pi इंटीग्रल ऑफ 0 to pi, इट इज a sin of t, और ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर, और स्क्वायर का इंटीग्रल कितना होता है, a sin t स्क्वायर t इज a by 2 into 2 by 2 pi, तो यू कैन कैंसिल दिस, a by 2 pi, a by 2 and 2 by 2 pi is cancel, 2 cancel, ये आया a square by 2 into pi, a square by 2 into pi, this is also cancel, तो a by 2 is correct answer। तो a1 का आंसर आएगा 0, b1 का आंसर आएगा a by 2, सी ऑप्शन इज करेक्ट। n से कैलकुलेशन ना करें आप, n को 1 या 2 रख के कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर करेक्ट मिलेगा आपको, है ना, और जल्दी मिलेगा, पूछा भी ऐसा ही पूछा जाएगा आपसे। ये बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? ओके फाइन, आगे देखते हैं। ओके, अच्छा ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन कैसे, चलो इसको भी करो ट्राई, है ना, ट्राई दिस क्वेश्चन, how will you solve this question? A signal xt is given as minus infinite to infinite minus 1 to the power k del of t minus k divided by 2000, this is passed through an LTI system with the frequency response this, बताओ आउटपुट क्या होगा,
अच्छा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहली बात तो हाउ वी विल ड्रॉ दिस फंक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाउ वी विल ड्रॉ दिस फंक्शन, तो आपको समझ में आना चाहिए कि दिस इज नथिंग बट एन इम्पल्स ट्रेन। आ गया, ये रहा, है ना। चलो, आपको पता है इम्पल्स ट्रेन क्या होती है? यू नो दैट इम्पल्स ट्रेन इज दिस summation n equal to minus infinity to infinity del of t minus n t नॉट। टी नॉट का वैल्यू कितना दे रखा है इसमें? टी नॉट इज गिवन एज 1/2000, है ना। टी नॉट का वैल्यू दिया है 1/2000, और इसकी पीरियोडिसिटी कितनी हो जाएगी? व्हेन टी इज इक्वलेंट, व्हेन के इज इक्वलेंट टू 0, ये कितना आ जाएगा? एक इंपल्स मिलेगी के इक्वल टू 0 पे,
व्हेन k इज इक्वल टू 1 तो एक इंपल्स मिलेगी यहां नेगेटिव, व्हेन k इज इक्वल टू 2 एक इंपल्स मिलेगी आपको कितनी, पॉजिटिव। करेक्ट है। तो इसका पीरियोडिसिटी कितना आया, द पीरियोडिसिटी फॉर द फंक्शन इज इक्वल टू, है ना, एक पीरियोडिसिटी नहीं है, कितना इसका पीरियोडिसिटी, t पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू 2t नॉट। ये समझ में आया। और फंक्शन कैसा है, दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट वर्टिकल एक्सिस। सिमेट्रिकल अबाउट वर्टिकल एक्सिस अगर मेरे पास फंक्शन है तो व्हाट आई कैन से, दिस इज इवन फंक्शन। तो एक पार्ट तो आ गया इवन फंक्शन, तो इसमें साइन के टर्म नहीं हो सकते, इवन फंक्शन। दूसरा क्या, x ऑफ t माइनस टी बाई टू, हाफ वेव सिमेट्रिक भी है। देखो यहां से आधे पीरियड पे जाके इसको अपोजिट, इसको नीचे इसको ऊपर करोगे तो यू विल गेट सेम फंक्शन। तो दिस इज हाफ वेव सिमेट्रिक ऑल्सो। हाफ वेव सिमेट्रिक भी है, इवन भी है। देखो आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हाफ वेव सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ कि ऑड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होंगे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई बाय टाइम पीरियड। तो ओमेगा नॉट इक्वल टू 2 पाई बाय टीपी, और टीपी का वैल्यू कितना है, टीपी इज इक्वल टू 1/1000, 1/1000, क्योंकि टी नॉट का वैल्यू है 2000, तो ये टीपी हुआ 1/1000, तो यू कैन से ओमेगा नॉट इज इक्वल टू व्हाट, 2000 पाई। अब जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आपको आउटपुट में मिलेंगे वो ऑड मिलेंगे, तो सबसे पहले 2000 पाई, फिर मिलेगा 6000 पाई, 2000 पाई 6000 पाई। बताओ इसमें से क्या बाहर निकलेगा, आप बोलेंगे कि सर इसमें से बाहर केवल 5000 वाला कंपोनेंट ही निकलेगा, तो 4000 वाला कंपोनेंट तो इसमें है ही नहीं, तो ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए। अब ऑप्शन कौन सा बचा, 4000 और 2000 पाए, है ना, ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। तो आप क्या करें, A1 का वैल्यू कैलकुलेट कर ले, यू विल गेट योर आंसर। A1 का वैल्यू कैलकुलेट किया तो कितना आ जाएगा, इवन फंक्शन है ना, so it's 4 times of t integral of 0 to t by 2 del t into dt, del t into cos of omega t, उसका वैल्यू हो जाएगा 1 into dt। so 4 divided by 1000, 1/1000 कितना हुआ 4000। आंसर इज व्हाट, 4000 cos of 200 pi t is correct answer। है ना, तो आप इनको लॉजिक से करें, मतलब पूरा पूरा फूरियर सीरीज निकालने का कोई तुक बनता नहीं है। ये पॉइंट समझ में आया, हाँ जी बोलिए, इज इट क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन दे विल आस्क इन एग्जाम, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, यस और नो। क्या ये क्लियर हुआ, बता दें एक बार फिर आगे बढ़ते हैं हम, क्लियर। चलो आगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज दिस। देखें जरा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है अगला। एक क्वेश्चन है, इन विच f of x is given by 0 when it lies between minus pi to 0, है ना। फूरियर सीरीज का प्रॉब्लम है, गेट में पूछा हुआ, x when it lies between 0 to pi, ये एक फूरियर सीरीज आपको दी हुई है,
और इसका फूरियर सीरीज भी दिया है। इसका फूरियर सीरीज है π/4 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1/n स्क्वायर इंटू cos of n π-1 into cos of n π minus 1/n cos of n π into sin of nx cos of n π into sin of nx। ये कोई फंक्शन दिया है, उसकी फूरियर सीरीज भी आपको दी है। ओके फाइन, ये फंक्शन है, ये उसका फूरियर सीरीज है, ये फंक्शन है, ये उसका फूरियर सीरीज है। अब आपको बोला है कि बाय पुटिंग x इक्वल टू पाई, बाय पुटिंग x इक्वल टू पाई इन अबव वी कैन हैव दिस सीरीज। हमारे पास ये सीरीज मिलती है 1+1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/7 ये मुझे कोई सीरीज मिलती है। तो बताओ इस सीरीज का सम क्या होगा, है ना। 1/n² इज समेबल, कन्वर्ज होती है सीरीज, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज सम ऑफ दिस सीरीज, बताओ क्या होगा। एक फूरियर सीरीज है, fx दिया है आपको, fx का फूरियर सीरीज भी दिया है आपको। इस फंक्शन में अगर x इक्वल टू पाई रख दिया जाए तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस फूरियर सीरीज।
What is the answer? Let's say the Fourier series. Let's draw this function first. It is, this function is, you can say this function is this. This function lies between minus pi to plus pi, and one interval is 0. So you can say between minus pi and 0, the value is 0. Then at x equal to pi, the value is equivalent to pi. ये फंक्शन दिया है आपको f of x, यही दिया है ना, because what is saying, the function is x is what, straight line हमने बना दी between 0 and pi, तो x equal to pi पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, pi. Okay, fine. अब ये बोला है कि the Fourier series is how much? The Fourier series is pi by 4. Okay, Fourier series is when you put x equal to pi, Fourier series at x equal to pi is, when you put x equal to pi, this is sin n pi, and sin n pi will become 0. तो कितना बचा? This is 1 by pi n square into cos of n pi minus 1 into cos of n pi. इतना बचा है. चलो आगे देखते हैं. If I write even number, if I write n equal to even number, cos of even pi is equivalent to 1, so 1 minus 1 will be 0, so I will only put n equal to odd number. So can I say when n is equivalent to odd, so 1 divided by pi, n का value 1 रखा तो कितना, this is 1, cos odd pi is minus 1, so this is minus 1 into minus 1, कितना हुआ 2, so you can say this is 2 plus, when I put n equal to, when I put n equal to 3, it's a minus 1 minus 1 minus 1, so this is, let's take this minus common, this is 2 divided by 3 square plus 2 divided by 5 square plus 2 divided by 7 square and so on. This is f of x equal to pi. This is the equation valid for f of x equal to pi पे ये equation valid है. So can I say the value of the function at okay, value of function of f x equal to pi is minus, okay, what is common, 2 by pi, तो ये कितना बन जाएगा, 1 plus 1 by 3 square plus 1 by 5 square plus 1 by 7 square and so on. You need sum of 1 plus, okay, you need a sum of this series. So can I say x equal to pi having value minus 2 by pi into sum, है ना, सीरीज का ये सम हो जाएगा. तो इसी का तो वैल्यू निकालना है. अब बताओ x इक्वल टू पाई पे वैल्यू कितना है इसका, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एट x इक्वल टू पाई. अच्छा, इसमें एक और वैल्यू था कितना, इट्स पाई बाय 4, तो यहाँ एक और पाई बाय 4 भी लिख दो. पाई बाय 4 था ना स्टार्टिंग में.
व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू पाई? ये वैल्यू बताओ जरा मुझे, कितना वैल्यू होगा? कमेंट में लिख के बताओ कितना वैल्यू है। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू पाई विल बी पाई स्क्वायर बाय 8। ओके, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कितना वैल्यू होगा, है ना? टोटल आंसर बता दिए। x इक्वल टू पाई पे देखो, मैंने जो आपको डिसकंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट बताया था, द कन्वर्जेंस ऑफ फूरियर सीरीज, बिकॉज योर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई, है ना? देयर इज ए जंप, तो जंप से बाद में, जंप से पहले का वैल्यू 8 कर दो तो कितना आ जाएगा? पाई बाय 2। सो व्हाट आई कैन से, द वैल्यू एट x इक्वल टू पाई विल बी पाई बाय 2। पाई बाय 2 इक्वल टू पाई बाय 4 minus 2 by pi into sum of the series. Pi by 2 minus pi by 4 is, and this value is, okay, minus minus, this is plus, this is also plus, we made a mistake. This is pi by 4 equal to 2 by pi into sum. So what you can say, sum is equivalent to pi square by 8. Pi square कितना होता है? 10 by 8. It's 1.25. 1 by n is not summable. 1 by n square is summable. Pi square by 8, मानसी शंकर, करेक्ट। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? क्या फूरियर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? हाँ या ना बोलिए एक बार। फूरियर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? क्लियर। फूरियर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को? यस। फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट वन मोर इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्म, है ना? फूरियर ट्रांसफॉर्म का एक लिमिटेशन है कि इट इज ओनली एप्लीकेबल इफ इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट इज फाइनाइट। कल हम स्टार्ट करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज नोन एज ट्रांसफॉर्म विद आरओसी, है ना? यू हैव टू डिफाइन द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, तो वो किसी भी सिग्नल के लिए निकाला जा सकता है। तो कल की क्लास में हम बात करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में, फिर हम स्टार्ट करेंगे डिजिटल, है ना, डिस्क्रीट पार्ट स्टार्ट करेंगे। सो आई होप दिस इज क्लियर। मिलते हैं कल, ठीक है? आज तो फूरियर सीरीज इज ओवर, यू कैन ट्राई लॉट ऑफ क्वेश्चंस, जहां से मिले आप करें, और थोड़ा ध्यान रखें सिमेट्री कैलकुलेशन को मिनिमाइज करें। दिस इज द आइडिया टू अप्रोच द फूरियर सीरीज। आज का सेशन करें वाइंड अप। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच। है ना? ये टॉपिक का एंड है, कल स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। द न्यू टॉपिक विल बी द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। कोई क्वेश्चन किसी का पूछ सकते हैं आप, एनी क्वेश्चन? ओके, नो।